मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे एक बार बता दीजिएगा आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। एवरीथिंग इज़ ओके अंकित? ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था नाउन नंबर। आज अपन चलेंगे आगे एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। उससे पहले ठीक है, एक टॉपिक मैंने आपको दिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग स्किल। इट वाज पेंडोरा पेपर। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं 10 मिनट के टाइम में, ठीक है ना। चलिएगा, पेंडोरा पेपर्स, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे। मैम आपसे पढ़ा है, बताए। ठीक है, जिसको टैक्स पे नहीं करना होता है वो असेट्स को वो ट्रस्ट को दे देते हैं। ठीक है, यही होता है। कौन रिलीज करता है मैम ये पेपर? ICIJ है ना। इससे पहले कोई पेपर रिलीज हुए, ऐसे कोई पेपर रिलीज हुए थे? पनामा और पैराडाइज पेपर। चलिए ठीक है, हाँ आप बताएं कुछ। इतना ही पढ़ा था, कुछ नया है इनके अलावा? चलो ठीक है, इस तरफ से વર્ડ કઈ રીતે આવ્યો હતો કે ગ્રીક માઇથોલોજીનો એક ઇડિયમ છે કે ઓપનિંગ ધ પેન્ડોરાસ બોક્સ. વેરી ગુડ. એટલે નક્કી છે કે તમે ઓપન કરશો એટલે કંઈક અનએક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ આવી શકશે. તેના ઉપરથી પેન્ડોરા પેપર્સ નામ આયા બિલકુલ. અને જ્યારથી ઓક્ટોબર 2021માં પેન્ડોરા પેપર્સ લીક ठीक है. એટલે એની 2 વર્ષ પહેલા ICIJ છે ને ગ્લોબલ નેટવર્ક છે. સૌથી વધુ કન્ટ્રીઝમાં એક જર્નાલિસ્ટ અને મીડિયા ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. ठीक है. એટલે 2 વર્ષ પહેલા એ લોકોને ટીપ ઓફ મળી હતી. એટલે 2 વર્ષ ઇન્વેસ્ટિગેશન એ લોકોએ કર્યું. એના પછી ઓક્ટોબર 2021માં પબ્લિક સમક્ષ રિવીલ થયું. ठीक है. એમાં 11.9 મિલિયન ડોક્યુમેન્ટ્સ હતા અને 3 ટેરાબાઇટનો આખો ડેટા હતો. બરાબર. એટલે એમાં જે ટોપ રિચેસ્ટ પર્સન હોય, બધા લીડર્સ છે, સેલિબ્રિટીઝ છે, ને એ લોકો પોતાની ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ પે ન કરવો પડે. એટલે જે ઓફશોર કન્ટ્રીઝ હોય જેમ કે વિયેતનામ છે, વર્જિન આઇલેન્ડ છે, એ લોકો પોતાના વેલ્થ મેનેજર કા લોયર થ્રુ કંપની એસ્ટાબ્લિશ કરે. બરાબર. પોતાના નામે ન હોય, બીજાના નામે કંપની એસ્ટાબ્લિશ કરે. ठीक है. અને એ લોકો જે કંપનીના બેંક અકાઉન્ટ હોય એના નામે પ્રોપર્ટી પરચેસ કરે. अच्छा. એ લોકો એ બેંક અકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરે. बराबर. ठीक है. એના ઉપર ટેક્સ ન ભરવો પડે. એ બેઝિકલી જે કન્ટ્રીઝ હોય એમાં ટેક્સ સાવ લો જ હોય કે હાવ લો હોય જ નહીં ટેક્સ. बराबर. या तो टैक्स बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं. चलिए ठीक है, ठीक है. ऑलमोस्ट आपने बहुत अच्छा बताया. और कोई अपनी बात को अगर रखना चाहता है तो एनीवन? अपनी तरफ से मैं 2-3 स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ. Sir, there are certain terms in the when I was going through the entire content. There are certain terms that is trust, then the of shell companies and Indian context. I want to discuss the Indian context. What is there for us for the entire that investigation? Okay. What we are going to get from that investigation? How it's going to benefit for us? Okay. So there are certain terms that trust. So how we define trust? Trust is a legal. It's not a legal entity in India. So sorry, it's a legal. It's a legal entity in India, but we are not recognized as a legal entity. We recognize the trustee. Okay. In trust, there are 3 parties involved. It's a settler, trustee, and the beneficiary. Okay. So the settler set the trust to hold its assets or investments through the trust, and ultimately it's going to benefit to the trust to the settler. Okay. The second term is the shelf companies, SHELF. The shelf companies are basically the pre-registered companies which are literally crafted by the corporate firms or the other law firms
to do business, to not to only read a contract or accept the business. Okay. Activities accept the business. And third is the shell companies, SHELL, the shell companies, which are the intention is to create such kind of companies to make a money laundering or commit to frauds. Okay. Now the Indian government has made certain remedial measures because it's not good for the global society. Okay. Because they are basically doing tax avoidance. ठीक है. Because establishing trust is not a illegal activity. It's illegal. However, you are avoiding tax through that. So the gap between the haves and have-nots, it's still increasing. So to minimize the gap, Indian government has taken certain steps. That is the Prevention of Money Laundering Act, which was recently in use. Then the Indian government has also made a certain international cooperation, that is the double taxation avoidance agreement. Okay. And also the another thing is that the double taxation avoidance agreement, general agreement on tax and tariffs, GATT. Okay. So through the certain remedial measures, government is trying to keep that minimum, that which also emphasize the shadow economy and also incentivize the terrorism activities and drug trafficking. That's it. Okay. तो देखिए एक्चुअल में क्या है, मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ. ICIJ एक संस्था है ना. इसका काम एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी ब्लैक मनी की रिगार्डिंग कोई ऐसी कोई चीज़ें होती है, ठीक है, जिसको रोका जा सके या जिसके ध्यान, मतलब जो पब्लिक को ध्यान होना चाहिए, तो ऐसे में क्या करती है कि ये जो इस टाइप की कंपनीज होती है, ठीक है, जैसे मैंने ये संस्था कहा ICIJ है ना, ये जर्नलिस्ट की कंपनी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसके अंदर आई थिंक 600 के आसपास जर्नलिस्ट है ऑलमोस्ट, है ना, जिसके अंदर जर्नलिस्ट जो है आई थिंक 117 कंट्री के जर्नलिस्ट है ना. इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस इसको रिप्रेजेंट करता है ना. तो इनका क्या काम होता है पता है, ऐसे कोई भी लोग, ठीक है, जो अपनी ब्लैक मनी को, मतलब अपना मनी जो है, ठीक है, उसको टैक्स से बचाने के लिए, जाहिर सी बात है किसी भी पैसे पे अगर टैक्स नहीं लग रहा मतलब वो ब्लैक मनी है ना, तो अपने टैक्स को बचाने के लिए ऐसी कुछ कंट्री के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बताते हैं, है ना. ऑफशोर कंट्रीज होती है, ऑफशोर अकाउंट होते हैं, ऑफशोर कंपनीज होती है, जहां पे क्या करते हैं वो अपना मतलब एक इन्वेस्टमेंट बताते हैं. ये इनका मेन एम होता है. अब वो ऐसी कंट्री होती है जहां पे या तो टैक्स नहीं लगता है ना, या फिर नहीं के बराबर लगता है. तो ये एक्चुअल में इनका मेन एम है. तो ICIJ जो है ये क्या करते हैं, इस पे इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, है ना. अब ऐसे कैसे, इससे पहले एक पेपर आया था आई थिंक पैराडाइज, फिर आया था पनामा, है ना, और अभी अपन बात करें पेंडोरा. इन्होंने एक बात रखी कि पेंडोरा जो वर्ड है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर यूज कर रखा है. आई थिंक एक लड़की थी जिसका नाम पेंडोरा था, और पेंडोरास बॉक्स इसको कहा जाता है. ये एक इडियम्स भी है, अगर आप इंग्लिश में इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो इसका मीनिंग क्या होता है कि पेंडोरास बॉक्स को जब खोला जाएगा तो उसमें से बहुत सारी बुराइयां निकलेगी, ऐसा माना जाता है. ठीक है, मतलब जो फ्यूचर के लिए क्या हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. तो ये एक्चुअल में वर्ड पेंडोरास बॉक्स जो है वो पेंडोरा पेपर इस वजह से आया है ना. और अगर अपन बात करें, इसका मेन एम एक ही है, क्या, ब्लैक मनी जो है, ठीक है, उसको टैक्स, या तो उस पर टैक्स नहीं देना या फिर उसको टैक्स से बचाना, ये इनका मेन एम होता है. तो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे वहां रोकते हैं, है ना. इन्होंने कुछ कंट्री के नाम भी लिए, ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें, एक तो इसके अंदर स्विट्जरलैंड बहुत फेमस है. स्विट्जरलैंड के अंदर आपने देखा होगा स्विस अकाउंट जो है वो बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, है ना. तो ये इनका मेन एम होता है कहीं ना कहीं पैसों को क्या करना, पैसों पे टैक्स लगने से बचाना, है ना. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर था. इसका जो डेटा था वो आई थिंक 2.9 TB के आसपास था, है ना. 11 मिलियन के आसपास का डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर, है ना. इतने डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर थे, जिसके अंदर कुछ इमेजेस थी, ठीक है ना, कुछ मेल्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन थी, कुछ मैसेजेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन थी, ये सब इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है. तो पेंडोरा पेपर एक्चुअल में जो है ये वही है. एक स्टूडेंट ने मेरे से एक सवाल किया कि सर ये लीगल है या इलीगल है, तो ये ना तो लीगल है ना ही इलीगल, इसको ग्रे एरिया कहा जा सकता है, ठीक है ना. क्यों, क्योंकि अगर ये लीगल है तो सब क्यों नहीं करते, और अगर ये इलीगल है तो गवर्नमेंट इस पर क्यों कुछ करती क्यों नहीं, है ना. तो ये इसकी एक मेन दिक्कत है. ठीक है, टॉपिक मेरा था पेंडोरा पेपर. ठीक है, आज स्टूडेंट्स इतने कम कैसे दिख रहे हैं ऑनलाइन, तो चलो ठीक है. RRB, अच्छा, रीजनल कब है एग्जाम RRB का, इसी संडे को. तो हम तो यार वीक में एक बार मिलते हैं, एक बार तो तुम मुझे टॉलरेट कर ही सकते हो, है ना. चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसा जिसको ठीक लगे.
तो आज अपन एक काम करते हैं, चलेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। एक टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप प्रिपेयर करके आइएगा, है ना। टाइम हो तो कीजिएगा, हालांकि आप एग्जाम आप में से किसी का है क्या इस संडे सैटरडे? कल ही है, नेक्स्ट आगे वाला संडे को है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आरआरबी है जिसका, ठीक है, दैट इज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बट आगे आपने देखा होगा आईबीपीएस पीओ आ चुका है ना। और आरआरबी के अंदर मेंस में आपका इंग्लिश आता है ना। और इंग्लिश और हिंदी में अगर अपन बात करो तो इंग्लिश ज़्यादा आसान होती है एज कम्पेयर टू हिंदी। हिंदी की कट ऑफ पिछले साल कितनी रुकी थी पता है तुम्हें? इंग्लिश की कट ऑफ देखना चाहोगे? बताओ कौन सा ठीक है। और ये फर्क और क्लियर करूं, एक तो होता है भाषा संसाधक, हिंदी में बोला मैंने, भाषा संसाधक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बताओ कौन सा ठीक था? लैंग्वेज ट्रांसलेटर नाम से पता चल रहा है ऐसा एक कोई भी चीज होगी जो लैंग्वेज को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। और भाषा संसाधक, संसाधक में लंका लुट सकती है। पता नहीं क्या कहना चाहता है। तो मैं तुमसे कहना ही चाहता हूं कि हिंदी जो अपन बोलते हैं वो एक्चुअल में उस वे में नहीं है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। और जब आप करोगे एक दो आप एसटी देके देखना, आपको आइडिया आ जाएगा कि हिंदी जो अपन सोचते हैं वैसी नहीं है ना। उसके अंदर और भी बहुत सारे, हाँ सागर ने लिखा है सर ग्लासेज, और हिंदी में बोलते हैं ऐनक, ठीक है। तो ये फर्क बहुत सारे है, इतना ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि फोकस कीजिएगा थोड़ा। और आईबीपीएस पीओ इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया, ये आपको पता होगा, 6432 वैकेंसी, दैट आर रियली बहुत बढ़िया है। पिछले 5 सालों में अगर मैं देखूं और इंक्रीज हुई कितनी, 500 के आसपास हुई होगी मुझे लगता है कुछ तो, क्योंकि कुछ बैंक्स ने इसके अंदर वैकेंसी डाली नहीं थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, है ना, बीओबी ने भी डाली नहीं है, बीओबी डालेगा देखना। तो ये वैकेंसी ऑन एन एवरेज कितनी हो सकती है पता है? 7000 के आसपास यू कैन। और आपको एक चीज बता दूं, इतनी अच्छी वैकेंसी मैंने पिछले 3 से 4 सालों में नहीं देखी। 3-4 साल छोड़ो, 5 सालों में नहीं देखी। अभी तक आपके बैंक की वैकेंसी 3-4 हजार आती थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, है ना। तब वैकेंसी आती थी 6-7 हजार। मैंने 8,000-9 हजार के आसपास वैकेंसी भी देखी, 8,000 के आसपास तो आती थी। और ये वैकेंसी इस बार इतनी अच्छी आई है, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। 2022 डिसाइड कीजिएगा आप एक बहुत अच्छी जॉब के साथ रहो। उसके अलावा मैं इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आप अच्छा कर सकते हो। इंग्लिश की अच्छी बात क्या पता है, कम टाइम में आप अच्छा कर सकते हो, है ना। बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें जितना टाइम जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चाहिए उतना देना पड़ेगा। इंग्लिश में ऐसा नहीं, अगर तुमने क्वेश्चन ध्यान से देखा और अपना आंसर आपको आता है, यू कैन टेक द आंसर। ये बहुत आसानी से हो सकता है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आपने इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छा कर लिया, ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट ठीक ठाक भी है, यू कैन, है ना। अब इंग्लिश में मैंने आपको एक बात और कही थी, 10 में से 7 स्टूडेंट की इंग्लिश खराब होती है, सिर्फ 3 की अच्छी होती है। और जिस 3 की अच्छी होती है उनका सिलेक्शन पहले होता है, ये आप मान लेना, ऐसा एक्चुअल में है। तो आप ट्राई कीजिएगा उन 3 स्टूडेंट्स के अंदर आने में, कैसे भी करके। हाँ एफर्ट्स लगेंगे, यू हैव टू डू, है ना। तुम्हें चीजें करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना संभव नहीं है ना। और एफर्ट्स जो लगेंगे, अगर आप मेरे साथ रह रहे हो या फिर मेरे हिसाब से चल रहे हो तो वो एफर्ट्स आप लगा लोगे, है ना। मैंने आपसे कहा अपने रीडिंग स्किल को अच्छा करो, और रीडिंग स्किल का जब जब टाइम आया मैं आपका रीडिंग स्किल चेक करूंगा, है ना। रीडिंग स्किल चेक करने का तरीका मेरे पास जो है वो मैं आरसी के जरिए कर सकता हूँ, क्लोज टेस्ट के जरिए कर सकता हूँ, पैराजम्बल के जरिए कर सकता हूँ, है ना। जैसे मेरा नाउन नंबर खत्म होता है मैं लूंगा वर्ब, और वर्ब जैसे ही खत्म हो जाती है मैं कंपोजिशन उठा लूंगा फटाफट, और कंपोजिशन सबसे पहले करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कंपोजिशन में आपको करवा ही दूं बहुत जल्द, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। टॉपिक मेरे पास था पेंडोरा पेपर। नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, दैट विल बी, हाँ इससे पहले मैंने क्या दिया था, एजुकेशन पॉलिसी। चलिए अब मैं ले रहा हूं, दिए तो नहीं रखा, नहीं दिया ना। एडिक्शन विद स्मार्टफोन, सुनो ये टॉपिक मैं आपको क्यों दे रहा हूं। टॉपिक देने का रीजन है, अगर आप आईबीपीएस पीओ 2021 को देखो तो एक पैसेज आया था, और पैसेज के अंदर थीम यही थी। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखा है, पैसेज की थीम थी एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन, है ना। और आज के टाइम में स्मार्टफोन का एडिक्शन बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, इतना ज्यादा है कि अगर एक दिन किसी के पास नेट का रिचार्ज ना हो तो उसको लगता है कि मेरी दुनिया लुट चुकी है और मेरे जीवन में अब कुछ रहा नहीं है ना। ऐसा लोग फील करते, ये एक्चुअल कंडीशन है। अच्छा ये छोड़ो, और लोग ऐसे भी है कि आज के टाइम में मोबाइल फोन को अपने आप से 1 फीट की दूरी से दूर नहीं रख सकते, है ना। अगर चार्ज भी लगाएंगे तो पास जाके बैठेंगे,
है ना। तो ये एक्चुअल कंडीशन है स्मार्टफोन की, और ऐसा माना जाता है कि जो बंदा स्मार्टफोन एडिक्टेड है ना, उसका दिमाग ठीक वैसे ही होता है जैसे कि इंसान ड्रग एडिक्टेड होता है ना। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, ड्रग एडिक्टेड इंसान जब ड्रग लेता है तो उसके माइंड के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज डोपामाइन, जो प्लेजर के लिए होता है, और जैसे वो ड्रग लेता है उसको खुशी मिलती है ना। अब अपने से अच्छा वो अगर वो नहीं लेता तो उसको एंग्जाइटी फील होती है। ये एक्चुअल में ये सेम स्मोकिंग करने वाले बंदे के साथ भी होता है। कोई बंदा अगर सिगरेट पीता है तो उसके साथ भी ऐसा होता है ना, क्योंकि डोपामाइन रिलीज नहीं होता। अब सुनो, जब फोन अगर आप यूज करते हो और आपकी अब फोन यूज करने की हैबिट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब नाउ यू मे बी एडिक्टेड, है ना। अब ऐसे केस में अगर तुम फोन यूज नहीं कर रहे तो तुम्हारे माइंड में डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है ना। तो तुम्हें क्या, तुम जैसे ही फोन यूज करते हो तुम्हें मजा आता है ना, अपने को लगता है हाँ मतलब थोड़ा, और वो डोपामाइन रिलीज हुआ बिकॉज इट इज फॉर प्लेजर, है ना। अब सुनो, ये जो आप फोन यूज करके डोपामाइन रिलीज करवा रहे हो टेम्परेरी है, ये ऐसे भी होना चाहिए, ठीक है। जरूर नहीं कि आप किसी चीज का सहारा लेकर उसको रिलीज करवा रहे हो, दैट इज नॉट गुड। और ऐसे अगर हो जाए तो धीरे धीरे सीवियर प्रॉब्लम बन सकती है ना। आपने देखा होगा कि जैसे स्मोक के जरिए अगर अपन बात करें स्मोकिंग की, तो अगर कोई बंदा स्मोकिंग नहीं करता और उसको एडिक्टेड है तो उसको एंग्जाइटी फील होगा, वो कंफ्यूजन की स्थिति में चला जाएगा, हो सकता है सीवियर डिप्रेशन भी उसको फ्यूचर में हो सके, है ना। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट है। अगर अपन बात करें एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन की, तो आज के टाइम में पिछले 3 सालों से अगर आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो हमेशा ध्यान रखना, उन्होंने एक बहुत कॉमन थीम रखी है, मेंटल हेल्थ। आप देखना, कभी स्लीप के आसपास आता है पैसेज, कभी मेंटल हेल्थ के आसपास आता है, कभी एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन के आसपास, कभी सोशल मीडिया आता है। ये सब कॉमन टॉपिक, अगर आप पिछले 5 सालों के टॉपिक उठा के देखोगे, पेपर उठा के देखोगे तो आपको आइडिया आएगा, है ना। इसी वजह से मैं टॉपिक ले रहा हूँ। टॉपिक रहेगा एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन। नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको अच्छे से पढ़ के आना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर हो सकती है। इज इट ओके टू ऑल? चलिए, क्या लास्ट लेक्चर में वर्ड्स करवाए थे? यस, सीरीज कौन सी थी? सीरीज आपके रैंडम चल रहे, अच्छा रूट ही करवाए थे, रूट नहीं करवाए थे। तो अब अपन एक काम करेंगे, एक दिन करेंगे रूट, एक दिन करेंगे निमोनिक। जिस दिन जो आपको अच्छा लगे मुझे बता देना, वी विल डू इट, ठीक है। तो निमोनिक करवाए थे, बताना देखिए कौन से वर्ड्स थे, एक बार मैं आपसे पूछ लेता हूँ, है ना। चलिए आ जाइए। आज का पहला वर्ड, नोटबुक बंद कीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं द वर्ड इज याहू, तो याहू का मीनिंग क्या होता है ना। वाइल्ड को याहू कहा जाता है, इसके बहुत सारे सिनोनिम। आप मुझे बताइए इवेंसेंट क्या होता है? शॉर्ट लिविंग, क्षणिक, एफिमेरल इसका सिनोनिम है ना। अगर मैं आपसे पूछूं द वर्ड इज नॉमेडिक, जो घूमता रहता है, नॉमेडिक जनरली ट्राइब होती है ना, वॉन्डरिंग, घूमते रहने वाले। क्या आपको पता है ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो आवारा घूमता रहता है? आवारा जो है मतलब काम, कुछ लोग होते हैं ना काम धंधा नहीं बस घूमना है ना। कुछ तो काम से घूमते हैं और कुछ ऐसे घूमते हैं, जो ऐसे घूमते हैं उनको आई थिंक कहा जाता है वेगाबॉन्ड। सागर ने लिखा रोमियो, बहुत बढ़िया। तो ये रोमियो कहाँ घूमता है फिर? जूलियट के आसपास। पैरागॉन, एपिटोम, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, है ना, सॉरी समवन। आप मुझे बताओ सेल्यूब्रियस क्या होता है? हेल्दी को कहा जाता है ना। इसका एंटोनिम क्या होता है? मॉर्बिड, वेरी गुड। आप मुझे बताओ ये स्लेंडर क्या होता है? स्लेंडर, वर्ड पे गौर करो, आंसर अपने आप आएगा। स्लेंडर, हाँ, किसी को क्रिटिसाइज करना। स्लेंडर, कीवर्ड क्या बना था? सिलेंडर, है ना। गवर्नमेंट ने सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए बैकेनेलियन क्या होता है? जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। आप मुझे बताओ डेफर का मीनिंग क्या होता है? डेफर, है ना, प्रोक्रास्टिनेट कहा जाता है। डेफर का मीनिंग होता है किसी भी चीज को पोस्टपोन करना। और आज का लास्ट वर्ड आप मुझे बताइए विविड क्या होता है? विविड होता है क्लियर, और इसका एंटोनिम क्या होता है? वेग। वेग का मीनिंग होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट, जो एम्बिग्यूअस हो, स्पष्ट ना हो, उसको बोलते ये। क्या मेरी बात क्लियर? चले आगे। तो आज अपन चलते हैं एक रूट की तरफ, एक रूट में करवाऊंगा, उसके बाद में चलेंगे ग्रामर की तरफ। आज का रूट रहेगा, क्या आपने ये वर्ड कभी सुना? पैथी, हाँ, एलोपैथी, होम्योपैथी। सुनो, इसमें 2 वर्ड, एक तो होता है पैथी, एक होता है पैथो। पैथो वर्ड डिजीज के आसपास घूमता है, पैथो किसके आसपास घूमता है? डिजीज। और पैथी हमेशा किसके आसपास घूमता है पता है? या तो होता है ये फीलिंग्स, या होता है ये इमोशंस।
हमेशा ध्यान रखना ये वर्ड इसी के आसपास घूमता है, नोट इट। जैसे अगर अपन बात करें पहला वर्ड, द वर्ड इज, सुना है, सिंपैथी। द वर्ड इज एपैथी। एपैथी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कई बार कॉमनली देखा गया है। एंटीपैथी, इसके बाद का वर्ड तुम्हारे पास रहेगा सिंपैथी, एपैथी, एंटीपैथी। एम्पैथी बहुत कॉमन वर्ड है अगर आपने कभी सुना हो, एम्पैथी, यस। और एक बड़ा अच्छा वर्ड तुमने कई बार सुना होगा, टेलीपैथी। अब सुनो, होम्योपैथी और एलोपैथी इसमें मत डालना क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रह जाएगा। पैथी और पैथो जो वर्ड होता है ना वो डिजीज के आसपास भी घूमता है, इसकी वजह से होम्योपैथी का जो मीनिंग होता है थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे अगर अपन बात करें सभी वर्ड में कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, पैथी दिख रहा है, मतलब एक बात तो श्योर है कि सभी का मीनिंग क्या होगा, फीलिंग्स और इमोशंस के आसपास ही घूमेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं सिंपैथी क्या होता है, सहानुभूति, फीलिंग ऑफ कंसोल समवन, किसी को सांत्वना देने की जो भावना होती है ना उसको सिंपैथी कहा जाता है ना। जैसे सपोज किसी का कुछ बुरा हो गया तो अपन उसको सांत्वना देते हैं, ठीक है ना, कंसोल करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, उसको बोलते हैं सिंपैथी। तो इसका मीनिंग हो जाएगा फीलिंग ऑफ कंसोल समवन, किसी को सांत्वना देने की भावना, उसको बोलते हैं सिंपैथी। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं एपैथी क्या होता है, हाँ, किसी के लिए कोई फीलिंग या इंटरेस्ट नहीं होना, उसको बोलते हैं एपैथी। जैसे सपोज मैं पढ़ा रहा और हाँ ठीक है सर पढ़ा लो, है ना, तो ये एपैथी है, मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बिना इंटरेस्ट कोई चीज़ मजा नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसा ही सब्जेक्ट है, इंग्लिश नहीं कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ही होता है ना। जब तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तो मजा आएगा, और ये इंटरेस्ट तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार के लिए अपने दिमाग में खाली जॉब का लालच रखो, बस मुझे जॉब मिलेगी, है ना, ये तुम्हें इंटरेस्ट बनाएगा, क्योंकि आज के टाइम में लालच के बिना कुछ संभव नहीं है, तो है ना। तुम्हें ये तो पता है ना पीओ की सैलरी कितनी होती है, तुम्हें उसके पर्क्स पता होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। हाँ, तो वो बेनिफिट्स दिमाग में लाओ, और आज की कंडीशन को देखोगे, आज तुम कैसे हो, जॉब लगने के बाद तुम कैसे हो जाओगे, है ना। तो एपैथी का मीनिंग हो जाएगा लैक ऑफ फीलिंग या फिर इंटरेस्ट। यकीन मानिएगा जो भी कंडीशन आज आपकी है, अगर आपको जॉब मिल जाती है, योर लाइफ विल बी चेंज्ड, है ना, किसी भी कंडीशन से आप अगर गुजर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड एंटीपैथी। एंटीपैथी का मीनिंग पता है क्या होता है, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, किसी के लिए नफरत या नापसंदगी की जो भावना होती है उसको एंटीपैथी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक रूट और देता हूं, एक रूट होता है एंटी। अब देखना दो रूट होते हैं, एक होता है एंटी, एक होता है एंटी। क्या तुम्हें पता है इन दोनों में क्या फर्क होता है? ये जो वर्ड है ना ये हमेशा किसके आसपास जाता है, किसी के खिलाफ, और ये वर्ड हमेशा किसके आसपास जाता है पता है, पहले, बिफोर। एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, क्या तुमने ये देखा है एएम और पीएम क्या होता है इसका फुल फॉर्म? जो आपने बोला इन दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी को भी पता है एएम पीएम। क्या ये बात मजेदार नहीं कि अपन बचपन से इसको यूज करोगे, उन्हें पता ही नहीं है क्या। एम इज फॉर मेरिडियन, और मेरिडियन का मीनिंग होता है दोपहर, और हमारे लिए दोपहर 12 बजे होती है ना। एएम होता है एंटी मेरिडियन, एंटी का मतलब ये वाला एंटी, मेरिडियन से पहले, दोपहर से पहले की जब भी बात होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटी मेरिडियन बोलते हैं। और पीएम क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन, मतलब 12 बजे के पहले पहले अगर आप टाइम बताते हो उसमें एएम लगाते हो, आपने नोट किया होगा, और 12 बजे के बाद जब तुम लिखते हो तुम क्या लगाते हो, पीएम लगाते हो, है ना। तो ये वही रूट है, इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे एंटी कौन सा, ये वाला है, तो एंटीपैथी का मीनिंग क्या हो जाएगा, फीलिंग ऑफ हैट्रेड या ग्रेट डिसलाइक, दोनों में से कोई भी हो सकता है, फीलिंग ऑफ ग्रेट डिसलाइक। चलिए, एपैथी वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट, ध्यान रखना जो वर्ड्स मैं करवा रहा हूं बहुत अच्छी वैल्यू रखते हैं। एम्पैथी बहुत कॉमन वर्ड है, एम्पैथी कभी भी सुना हो तो बोले, तो कैसे अनुभूति करोगे बताओ, खुद के लिए सर, वो दूसरों के लिए। लेट मी क्लियरिटी क्या होता है, जस्ट सपोज ये किसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, ये सफर कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम से, और मैं अपने आप को इनकी जगह पे रख के देखता हूँ कि यार बहुत प्रॉब्लम में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ। तो जब कोई किसी से गुजर रहा है तो आप उसको अपनी जगह पे रख के जब देखते हो तो उसको बोलते हैं एम्पैथी। इसका मीनिंग हो जाएगा
एबल टू अंडरस्टैंड समवंस फीलिंग, एबल टू अंडरस्टैंड समवंस फीलिंग, हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड है क्या, भावनाओं को समझो। एबल टू अंडरस्टैंड समवंस फीलिंग, है ना, जब किसी की फीलिंग को अपन समझे तो उसको क्या बोलते हैं, एम्पैथी बोलते हैं, किसी की जगह पे रख के सोचना कि यार क्या हो रहा है। टेलीपैथी बहुत कॉमन वर्ड है। एनीवन? लाइक माइंडेड, लेट मी क्लियर इट। अच्छा, एक सवाल तुम्हारे लिए, क्या 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 क्या, बातचीत, क्या तुमने ये सुना है, इसका मीनिंग क्या होता है? चलो यहां तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन पूरा बना दे। अब बताओ इसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड। तो टैली क्या हुआ, दूर, इसको भाष ना लिख के संचार लिख लो, है ना, मानसिक दूर संचार। तनिष ने लिखा है, सागर ने लिखा अंडरस्टैंड समवंस फीलिंग विदाउट टॉकिंग, है ना, तो ये हुआ दूर संचार। अब सुनो, संचार को हटा दे, अब बचा क्या, अब सुनो, टेलीपैथी का मीनिंग होता है दूर से किसी की भावनाओं को समझ लेना विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन। ये मजेदार बात है ना। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी को याद करो, उसका फोन आ जाता है, अरे यार मैं तुझे ही याद कर रहा था, है ना, ये क्या हुई, टेलीपैथी। अच्छा, टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है पता है, ये खाली आप आसपास बैठ के ही नहीं समझ सकते। अगर कोई बंदा यूएस में बैठा और तुम यहां बैठे हो तभी तुम उनसे बात कर सकते हो, ऐसा टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट है ना। ऐसा, अच्छा ऐसा क्यों होता है पता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि हम वर्ल्ड के अंदर किसी न किसी वे में, किसी न किसी से, कैसे, मतलब कोई ना कोई सोर्स है जिससे हम जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे, अर्थ, मैं यहां पैर रख के खड़ा हूं, एक्स पर्सन धरती के किसी भी कोने पे पैर रख के खड़ा है, अर्थ से जुड़ा हुआ मैं, है ना। अच्छा, फिर हवा यहां चल रही है, वहां पे भी। एक बार गलती से मैंने क्लास के अंदर चांद बोल दिया था, तो एक बंदे ने मेरे से बोला कि सर कहीं दिन हुआ तो मैंने कहा ठीक है फिर रहने दो, है ना। तो यस, ये क्या होता है, टेलीपैथिक कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, किसी दूसरों की से बात किए बिना उनकी बातों को जान लेना, है ना। अब आपने कई बार देखा होगा वाइब्स मैच नहीं होती, ये आज के टाइम में बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। आप किसी से बात, नहीं यार मजा नहीं आया, क्योंकि वाइब्स मैच नहीं हुई, है ना, आपकी सोच उससे क्या हो रही है, मैच नहीं हो रही। इसको क्या बोलते हैं, टॉक विथ समवन विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा सुना, आपने कभी ये महाभारत रामायण वगैरह कभी देखी है? उसके अंदर टेलीपैथी कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन से चलता है ना। जैसे मैं आपको बता देता हूं, कहीं पे युद्ध चल रहा है और साधु महात्मा भी देखता हूं क्या हो रहा है, वो टेलीपैथी है, वहां के हाल जान लेना, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, आपके पास टेलीपैथी हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर, कोई दिक्कत? तो आज का रूट मेरे पास क्या रहेगा, पैथी। तो आज अपन खाली एक रूट करेंगे, चलेगा, चलते आगे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, है ना। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जो अपना नाउन नंबर मैंने आपको करवाया था, है ना। मैंने आपको नाउन करवाया था, और नाउन में कितने टाइप के नाउन होते हैं ये करवाया था, है ना। क्या मैंने उसके अंदर एपोस्ट्रोफी एस करवा दिया था, पजेसिव केस पूरा हो गया था, उसकी एरर देख ली थी अपन, देखो एक बार। पॉजिटिव केस कितने, 6 कॉन्सेप्ट करवाए थे ना मैंने, और उसके अंदर मैंने बोला था उसके एरर के क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं, वो सब मैंने करवा दिया था। नहीं, क्वेश्चन करने थे, क्वेश्चन में नंबर और दोनों के एक साथ करवाऊंगे हमने बोला था, है ना। तो आज अपन एक काम करेंगे, देखो क्या करेंगे, चलो ठीक है। कंपाउंड नाउन करवाया था, इडियोमेटिक यूज, ये नाउन नंबर करवाया था। सुनो, ये जो मैंने एपोस्ट्रोफी एस करवाया था, उसके बाद में उसकी एरर के कॉन्सेप्ट बताया था कि एरर ऐसे बनती है एपोस्ट्रोफी एस पे, एरर करवा देती था ना। चलिए ठीक है, आप नोट्स बनाते रहना प्रॉपर। आज अपन डिस्कस करेंगे, देखो क्या एरर के क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा, नाउन नंबर और केस बोथ, है ना, दोनों एक ही साथ करेंगे। एक बार हल्का हल्का मैं आपको एपोस्ट्रोफी एस बता देता हूं, आप देख लेना आपको याद है या नहीं। एपोस्ट्रोफी एस के 6 यूज होते हैं, उनको साइड में रखते हैं, पहले एरर करते हैं। एरर की अगर अपन बात करें तो आपको पता होगा कि कभी भी पजेसिव केस का जो प्रोनाउन होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। आपको याद है योर्स फेथफुली और योर्स फेथफुली, जहां पे मैंने एक ही और में एपोस्ट्रोफी एस लगाया था वो क्या था, गलत था। दूसरा केस आपसे कहता है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर कंपाउंड नाउन है
तो कंपाउंड नाउन में आपका एपोस्ट्रोफी हमेशा लास्ट वर्ड पे लगता है, पहले वर्ड पे कभी भी नहीं लगता। दो सब्जेक्ट, दो नाउन अगर एंड से जोड़े गए हैं और पीछे वाली बात अगर कॉमन है तो तुम्हें लास्ट वाले वर्ड पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, और कॉमन नहीं है, इंडिविजुअल है, दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना है ना। ये सब बातें अपन डिस्कस कर ली थी ना। चलिए चलते आगे। तो आज अपना कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा रहेगा। कॉन्सेप्ट का नाम है नाउन, और नाउन के अंदर क्या, नंबर। क्या इसका इंट्रो दिया था मैंने? क्या एरर के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? नहीं दिया था ना? दिया हो तो बोलो। सारा हो गया था ना? चलो ठीक है, ये 7 एरर बनती है। तो आज अपन एक काम करेंगे, इन सभी एरर्स को समझेंगे, है ना, कहाँ कहाँ किस बेस में कैसे कैसे चल सकती है। बात करते कॉन्सेप्ट की। तो अगर अपन बात करें इसकी, ये तो सारी एरर है ना? मुझे बताना एक बार कॉन्सेप्ट, बेसिक ग्रामर नाउन। चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर और क्या क्या है मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। इन सभी को लेना देना नहीं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है ना। जो मैं चाह रहा हूं ये वो नहीं है। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, अपन कॉन्सेप्ट को बदलेंगे। होपफुली ये मिल जाए। हाँ यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट। चलो आ जाओ। तो ये सब मैंने करवा दिया था। नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, जेंडर अपन ने देख लिया था, फेमिनिन मतलब मस्कुलिन का फेमिनिन क्या होता है, कैसे होता है, देख लिया था ना। जेंडर बाकी है, कोई इश्यू नहीं। ये सब कौन से कंपाउंड नाउन दैट वी हैव डिस्कस्ड, है ना। तो आज के कॉन्सेप्ट कौन से समझ लीजिएगा। अगर अपन बात करें, हाँ सीधा यहां से, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा। ये सब कॉन्सेप्ट एक बार मैं बता देता हूं, उसके बाद में एरर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी बातें मैं बता रहा हूं उनके नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो के अंदर दे रखा है दैट इज कंप्लीटली ओके, है ना। समझते कैसे, देखो मैंने आपसे, अगर अपन बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि अगर अपन बात करें नाउन में एरर की तो उसके 7 बेस होते हैं। पहला होता है ऐसे कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, कभी प्लूरल नहीं बन सकते। ऐसे कुछ नाउन जो हमेशा कैसे रहते हैं, प्लूरल ही रहते हैं, सिंगुलर नहीं बन सकते। ऐसे कुछ नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे ही होता है। ऐसे कुछ नाउन जो दिखते सिंगल है लेकिन मीनिंग क्या रहता है, प्लूरल। ऐसे कुछ नाउन जो दिखते प्लूरल है लेकिन मीनिंग कैसा रहता है, सिंगुलर। ऐसे कुछ नाउन जहां पे जो ऑलरेडी प्लूरल ही है और उनके पहले अगर नंबर आ जाए तो वो कभी प्लूरल बनते नहीं है, क्योंकि डजन का मीनिंग 12 होता है। और अगर मैं लिखूं 2 डजन्स तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डजन 12 ही है तो 2 लगाते ही डजन मतलब प्लूरल ही है ना, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कुछ भी हो जाए, है ना। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर पहला नंबर हो, दूसरा नाउन हो, तीसरा भी नाउन हो, तो बीच वाला नाउन जो है वो कभी प्लूरल नहीं बनता। ये टोटल 7 कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखे थे, उन्हीं को आज अपन डिस्कस करते देखते कैसे। मैंने तुमसे कहा था पहला केस कहता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। कुछ नाउन हमेशा कैसे रहते हैं तुम्हारे पास, सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर अपन बात करें एडवाइस, अब देखना वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन, तो एक देखो, एक तो होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइस।
तुमने कभी सुना होगा। क्या तुम्हें पता है इन दोनों में क्या फर्क होता है? वेरी गुड। एक होता है वर्ब और एक होता है नाउन। तो ये नाउन है, इसका मीनिंग होता है सलाह और उसका मीनिंग होता है सलाह देना, ध्यान रखना। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि कभी भी एडवाइसेस नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। इसके अलावा तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन, तो वी कांट यूज इंफॉर्मेशन, है ना। ठीक बाद में क्या होता है? लगेज, बैगेज, सीनरी, मशीनरी, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास पोइट्री, पोइट्री के बाद में इक्विपमेंट, है ना, कभी इक्विपमेंट्स नहीं करेंगे। अच्छा अब सुनिएगा, वर्क, वर्क कैन बी वर्क्स। वर्क जो होता है वर्क्स हो सकता है, बट इसका मीनिंग क्या होगा? बदल जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। पेपर, पेपर कैन बी पेपर्स, है ना। ब्रेड, वुड कैन बी वुड्स। ट्रैफिक, वाटर कैन बी वाटर्स, है ना। फिर आ जाओ, आयरन, आयरन कैन बी आयरन्स। गोल्ड, अल्फाबेट कैन बी अल्फाबेट्स, है ना। और फूड कैन बी फूड्स, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में मैंने मिस्चीफ, स्टोन, ब्रिक और हेयर का है, हेयर कैन बी हेयर्स। तो मैंने देखो मेरी पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं? सिंगुलर ही रहते, कभी प्लूरल नहीं बन सकते, है ना। तो ये सारे के सारे वो वर्ड है जो हमेशा कैसे रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं। इनकी की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स मतलब एरर क्या बनती है? एरर ये बनती है कि डोंट मेक देम प्लूरल। अगर वो इनको प्लूरल बना दे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। जैसे अगर मैं कहूं सम इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस, और मैं तुमसे कहूं सेंटेंस ठीक है गलत है? रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन कांट बी इंफॉर्मेशंस, ये प्लूरल कभी भी नहीं बन सकता। अच्छा सुनो, मैंने कुछ वर्ड्स के साथ एस्टिक साइन लगाया है ना। अब एस्टिक साइन अगर लगाया तो मतलब ये प्लूरल बन सकते हैं, और अगर ये प्लूरल बनेगा तो इनका मीनिंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखते हैं कैसे। पहला वर्ड क्या दे रखा है? वर्क। क्या आपको पता है वर्क वर्क्स कब बनता है? किसी को आइडिया है? अब सुनो, आपने वर्ब बोला है, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउन। नाउन भी वर्क्स बन सकता है कब? सुनो, वर्क कैन बी वर्क्स, है ना। वर्क तुम्हारा वर्क्स बन सकता है, बट उसका केस क्या कह रहता है इसको थोड़ा समझिएगा। अगर मैं कहूं वर्क का वर्क्स बनना, तो हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा तब लिखा जाता है जब किसी के द्वारा लिखी गई कोई पोइट्री या फिर लिटरेचर है, रिटन बाय अ राइटर और पोएट उसको बोलते हैं। जैसे देखो एक सेंटेंस सुनो, आई लाइक ऑल द वर्क्स रिटन बाय गुलजार। मेरे को गुलजार के द्वारा लिखे गए सारे वर्क्स अच्छे लगते हैं। अब उनके द्वारा लिखी गई क्या हो सकती है? पोइट्री हो सकती है। मीनिंग बदल गया। अच्छा फिर मैंने क्या लिखा? पेपर कैन बी पेपर्स, लेकिन जैसे पेपर्स होता है उसका मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट। एक तो पेपर होता है नॉर्मल, एक अपन क्या बोलेंगे इसको? डॉक्यूमेंट्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा वुड का मीनिंग क्या होगा? वुड्स अगर हो तो वैसे वुड होता है लकड़ी, है ना, और वुड्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट। मीनिंग बदल गया। अच्छा मेरा सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुमने कभी वाटर्स वर्ड सुना है? बताओ कहाँ आता है? हाँ सी बॉडी, वाटर बॉडीज अगर कोई भी हो तो उसको वाटर्स कहा जा सकता है, उसको वाटर नहीं लिखे जाएंगे, ध्यान रखना। फिर आ जाओ आयंस। आयरन तो होता है लोहा, उस आयंस को बोलते हैं जंजीर। कोई चेन वगैरह अगर हो उससे बनी हो तो उसको आयंस कहा जाता है, ध्यान रखना। चलिए अल्फाबेट, अल्फाबेट कैन बी अल्फाबेट्स, और जब ये अल्फाबेट्स बनता है तो उसका मीनिंग लैंग्वेज होता है ना। अल्फाबेट होते हैं लेटर्स, ये आपको पता होगा। आ जाए फूड, फूड कैन बी वेराइटीज ऑफ फूड। अगर अलग अलग टाइप की वेराइटी है फूड की तो उसको फूड्स कहा जा सकता है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर मेरे पास मिस्चीफ, स्टोन ब्रिक, इसको छोड़ दो, सीधा आ जाओ हेयर। क्या तुम्हें पता है हेयर का हेयर्स बन सकता है? बताओ कब बन सकता है? अच्छा देखो एक सेंटेंस, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर्स एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। और मैं तुमसे पूछूं क्या सेंटेंस में कोई मिस्टेक है? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे हेयर काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? क्या तुम उसके सारे बाल गिन सकते हो? पता चला एक दिन बैठे लो आज गिन के रहूंगा 1 2 3, इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता, है ना, बिकॉज ये काउंटेबल कैटेगरी का है ही नहीं। तो ऐसे केस में तुम्हारा आंसर क्या बनेगा पता है? ऐसे केस में तुम्हारा ये जो हेयर्स लिखा वो क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा, बिकॉज ये काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं है। अच्छा, ये काउंटेबल की कैटेगरी में कब हो सकता है, देखते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं योर 2 hairs आर ग्रे, तुम्हारे 2 बाल सफेद है, क्या ये ठीक है? यस, क्योंकि इसको अपन ने क्या कर लिया, काउंटेबल की कैटेगरी में रख दिया, है ना। तो ऐसे केस में काउंटेबल हो सकता, बाकी कभी भी नहीं हो सकता। तो मैंने आपसे कहा ये हमेशा वो नाउन होते जो हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा सुनो, एरर कैसी बनती है, डोंट मेक देम प्लूरल, वो प्लूरल बना देगा। दूसरा, यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम, इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी आती है? क्या तुमने कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है? सब्जेक्ट के बेस पे कौन सी वर्ब आएगी? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी विल डिस्कस। फिर आ जाओ, डोंट यूज ए एन दीज दोज फ्यू मैनी, इनके साथ ये सब चीजें नहीं आती, है ना। जैसे अगर मैं कहूं आई विल गिव यू अ होमवर्क, गलत है। आई विल गिव यू होमवर्क, क्योंकि वर्क के पहले ए और एन नहीं लगा सकते। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, आई हैव अर्जेंट वर्क, यू कांट यूज एन अर्जेंट वर्क। गॉट इट? आई बात समझ में? तो मेरा पहला केस तुमसे कहता है कि ये नाउन हमेशा ऐसे रहेंगे जो हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे, इनको प्लूरल बनाया नहीं जा सकते। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए कॉन्सेप्ट बदलते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आगे, तो नेक्स्ट केस क्या कहता है समझते? अरे यार ये फिर मैंने कुछ गलत कर दिया। हाँ अब ठीक है, आगे आ जाओ। देखो ये सारे के सारे जो वर्ड्स तुम्हारे पास दे रखे हैं सिंगुलर है, इनको प्लूरल बनाया जा सकता है। कब? वर्क जो है वर्क्स बनता है ना, वर्क्स ऑफ तुलसीदास, हिंदी में इसने लिखा है रचना, है ना। फिर आ जाओ, पेपर का क्या बनता है? पेपर्स, मीनिंग क्या हो जाता है? डॉक्यूमेंट। आयन का क्या हो जाएगा? आयंस, मीनिंग क्या हो जाएगा? चेन। अल्फाबेट का क्या हो सकता है? अल्फाबेट्स, मीनिंग क्या हो जाएगा? लैंग्वेजेस। वाटर का क्या हो सकता है? जब वाटर बॉडी हो, सी हो, समुद्र के पानी की बात हो। अच्छा, सैंड, सैंड पता है ना, सैंड बोलते रेत को, और सैंड्स बोलते डेजर्ट को, है ना। डेजर्ट में भी 2 वर्ड है, इनको क्या बोलते पता है? होमोफोन्स बोलते हैं। होमोफोन्स ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसे ही होता है, बट मीनिंग क्या होगा? अलग अलग होगा। He deserted his GF or wife, he deserted her, ऐसा he deserted her, तो छोड़ दिया, deserted हो सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। चलिए आ जाइए, क्या मेरी बात क्लियर? फूड का क्या हो सकता है, और वर्ड्स का क्या हो सकता है? वर्ड का वर्ड्स हो सकता है, लेकिन वर्ड्स का मीनिंग क्या हो जाएगा वहां पे? प्रॉमिस हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा। क्या मेरी बात क्लियर है ना? तो पहला केस क्या कहता है? सारे नाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर। अब एक बात सुनो, जो भी बातें मैं करवा रहा हूं इनकी नोट्स प्रॉपर बनाना, है ना, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे पास, तुम आराम से देख के कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू, क्योंकि मैं अपने क्लास के अंदर जनरली नोट्स बनवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास देखो लेक्चर के 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है लर्निंग और दूसरा होता है प्रैक्टिस। तो मैं आपको खाली लर्निंग स्टेज करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस स्टेज एरर के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तुम्हें, बट फिर भी ध्यान यही रखना, ठीक है ना, क्योंकि जब तुम देखते रहते हो ना, हाँ सर चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। नींद विंद तो नहीं आ रही? हाँ तो रात को सोया करो अगर आती है तो, है ना। 2-2 3-3 बजे तक मजे मारते हो। चलो आ जाओ आगे। अब देखना, इसके कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक ऑब्लिक ब्रिक्स एंड स्टोन ऑब्लिक स्टोन्स। अब मैं तुमसे पूछूं कौन सा सही कौन सा गलत? जाहिर सी बात है, इसमें ब्रिक का ब्रिक्स नहीं होता और स्टोन का स्टोन्स नहीं हो सकता। इज इट ओके? आई बात समझ में? चलिए दूसरा बताओ। ये ठीक है ना, काउंटेबल बना दिया इसको। चलो आ जाओ तीसरा, वर्ड और वर्ड्स। अब ये क्या हो गया? गलत। आंसर क्या बनेगा? ये वाई, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? प्रॉमिस की हो रही है। आई बात समझ में? ये सेंटेंस को देख के पता लगाना है। चलो तीसरा बताओ। हालांकि ये प्रॉमिस नहीं है ना, बट यहाँ पे काउंटेबल ट्रीट हो रहा है। क्लियर है? चलिए, कैन यू नेम 2 वर्क्स ऑफ कालिदास? बिल्कुल सही है। वर्क का क्या बना? वर्क्स। अब सुनो, आप जो बोल रहे थे मैम, शी वर्क्स वेरी हार्ड टू गेट सिलेक्शन। अब अगर मैं तुमसे कहूं यहां पे ये वर्क्स है, ये एक्चुअल में क्या पता है? ये मेन हेल्प वर्ब है। तो इसको जब तुम खोल के देखोगे ना, तो ये क्या पता है? डज प्लस वर्क है।
अच्छा, ये डज क्या है, अभी के लिए डज समझ लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। इज इट ओके? कोई दिक्कत? चले आगे, चलिएगा आगे चलते हैं।